الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے آپ کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے پہلے چیپٹر سے شروع کریں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ گو کہ یہ ہم لوگوں نے چھٹیاں سے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اسے ایک بار ریوائز کر لیں۔ پاکستان کی نظریاتی اساس کا مطلب ہے بنیاد یا جڑ۔ جس نظریے کے تحت پاکستان بنایا گیا، اس نظریے کی بنیاد کیا تھی؟ اس نظریے کی بنیاد تھی دین اسلام۔ اس کے علاوہ نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کو انڈر لائن کیجیے۔ ایم سی کیوز کے اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے یہ ایک اہم لائن ہے۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا سے ہی سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو۔ اس کی میننگ بھی لکھ لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے۔ اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے، اسے بھی انڈر لائن کیجیے۔ جبکہ اصطلاحی لحاظ سے نظریے کی تعریف جو میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں، اس کو انڈر لائن کر لیجیے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا نظری تعریف لکھ لیجیے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریے کی مکمل تعریف ہے، نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائے عمل بنایا گیا ہو۔ لائے عمل مطلب پروگرام۔ یہ نظریے کی ایک مکمل تعریف ہے۔ اگر نظریے کی تعریف کے لیے کوئی آپ سے کویسچن کیا جاتا ہے تو آپ یہ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، یعنی راضی کر دے، تو وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ یہ تو ہوگی نظریے کی تعریف۔ اب نظریے کے ماخذ کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ ماخذ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے۔ وہ کون سے سورسز ہیں یا وہ کون سے ماخذ ہیں جو نظریے کو جنم دیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج نے جنم لیا۔ انڈر لائن کر لیجئے دونوں تحریکوں کو، اور یہ 19ویں صدی کو بھی انڈر لائن کیجئے، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت کہتے ہیں پھیلانے کو، کہ ہندوازم کو پھیلانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، بچوں شدھی کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو بنانا ہے۔ اب شدھی کے معنی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ برہمو سماج کے بانی راجا رام موہن بھی تھے، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتے تھے۔ کانگریسی دور حکومت 1937 سے 1939 لکھ لیجیے، یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ان 2 سالوں میں کانگریسی دور حکومت میں مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہندو راج یا ہندو کی حکومت قائم ہو جائے تو مسلمان اپنی شناخت اور پہچان کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد کا۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کے کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب جو تھا ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے۔ اقلیت مطلب کم تعداد میں تھے اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا ہوتا، یعنی مسلمانوں کی جو سیاسی پوزیشن تھی وہ کمزور تھی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشدد بھی ابھرنے لگا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس لائن کو انڈر لائن کر لیجئے۔
इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दे दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पे हुआ और वो नज़रिया था इस्लाम। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुस्लिम उलमा ने जो रद्द अमल का इजहार किया था अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम पर, मुस्लिम उलमा का रद्द अमल क्या था, ये क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका आंसर क्या होगा। मुस्लिम उलमा ने का रद्द अमल था कि उन्होंने अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया था। फोर्थ है हमारा मुश्तरका मौशी मकासद। मुश्तरका मौशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को ये समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था, वो मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इसकी कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त हो गया। हिंदुओं ने एक दलील दी इसके लिए ये कि वो तो पहले ही महकूम थे, अंग्रेज़ आए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है तो मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान 100 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। हिंदुओं ने इसकी दलील ये दी कि मुसलमान 1000 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं बरसगीर पर, तो ये उनके लिए बहुत तकलीफ दह बात थी, जबकि हम शुरू से ही महकूम हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों की सारी सख्ती जो थी वो मुसलमानों के लिए हो गई। मौशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी कर दिया और उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार तजारत के मौके ख़त्म कर दिए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। आखिरी माक़िज़ है मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, इसे स्टूडेंट अंडरलाइन कीजिए। उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी था, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता था, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। अब आप इसको भी अंडरलाइन कीजिए। हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने में अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपनी शनाख्त को बरकरार नहीं रख सकेंगे। माखिज़ तो हमने पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे नज़रिए की अहमियत को। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, अक़वाम इसी की वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है और इन्हें मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जदोजहद का जज्बा पैदा करता है और इनके हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया न सिर्फ इनकलाब को जन्म देता है बल्कि इसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ न कुछ वाक़यात कार फरमा होते हैं। आम तौर पर नज़रिया माशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रियात को जन्म देते हैं। यह आप अंडरलाइन कीजिए इसको। और माशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जदोजहद शुरू की तो उनका नज़रिया मसावी हकूक़ के हसूल का कहलाया। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम इनमें मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए ने जन्म लिया। इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपनी समाजी सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जदोजहद शुरू की, यानी जब कोशिश शुरू की, तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का जालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा कर दी और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पसे पर्दा तारीख़, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर शामिल होते हैं। यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। ये तो होगी अहमियत की बात
यहाँ एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि कौन से अनासिर हैं जो नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं, इसे अंडरलाइन। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि कौन से अनासिर हैं जो नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। हर नज़रिए के पस से पर्दा, आंसर को भी साथ ही अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन आप खुद बनाइए, इसका छोटा सा एक क्वेश्चन साइड पे लिख लीजिए कि कौन से अनासिर हैं जो नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं, और आपने आंसर इसका अंडरलाइन करना है। हर नज़रिए के पस से पर्दा तारीख, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब ऐसे अनासिर हैं जो नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। आगे है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। इस्लाम में नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसे अंडरलाइन कीजिए। मुकम्मल अंडरलाइन करना है, दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है तक। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे चल के जो आपने इसके अंदर ऐड करना है, पहले मैं वो वाली लाइंस पढ़ती हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, पहले जो दोनों लाइनें हैं इसे अंडरलाइन कीजिए। आगे चल के नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक ऐसा खित्ता, इसे भी यहाँ से शुरू कीजिए, अंडरलाइन कीजिए इसको। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमान बरसगीर कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके अलावा मैं अब इसके अंदर जो है वो आपको बताती हूँ। इसके लिए एक मौका पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ। नज़रिए की तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान वो लाएमल था जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया क्या था, इस्लाम पर रखी गई थी। इसे अंडरलाइन कीजिए, जिसको वाज़े करने का मकसद इस्लाम को एक तहजीबी, सकाफ़ती, तमदनी, सियासी और माशी निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो क्या कहलाया, नज़रिया पाकिस्तान कहलाया। जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान का अमल क़याम जो है, पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत जो है पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कोई तस्वुर ही नहीं। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमान हिंद ने शौरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुसलमान ममलिकत के क़याम की जद्दोजहद की। पाकिस्तान की तामीर पाकिस्तान यानी एक ऐसी रियासत लेना जहां इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए और उसके हसूल के लिए जद्दोजहद करना यानी तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तस्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिए। नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद की। ये था आज तक का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना था, जो पढ़ाया है मैंने। इस दौरान मैंने जितनी बातें आपको अंडरलाइन करवाई हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं आपने साथ साथ याद भी करने हैं। आज तक का टॉपिक हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।